है, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स द प्रैक्टिस सेट 3.1। ये मेरा पहला वीडियो है मैथमेटिक्स का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर इट एंड ऑल्सो मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। If any doubt, you can ask in the comment section till the end. So watch it this video till the end because I'm going to tell you many important things about polynomials. We are also going to cover with practice set 3.1. Let's learn what is a polynomial. A polynomial is an algebraic expression with the degree being positive integer. उससे पहले हम लोग जानते कि डिग्री से कैसे मालूम पड़ेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हियर आई एम टेकन अ पॉलिनोमियल दैट इज माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 2 प्लस एक्स। अब हियर एक्स इज नॉट रेज टू एनीथिंग एंड इट इज रिटन ओनली एक्स, दैट इज मीन्स that it is raised to 1, remember it. And here minus x raised to 4 to 1, here these are the powers of these terms. Here it 1 term, 2 term, 3 term and their powers are also there. And now which is the largest power? It is the 4. So this is the degree of this polynomial, we say it. Okay, ये देखो मैंने एग्जांपल्स भी कुछ ले लिए। x raised to 5 y cube plus sorry not plus z raised to 1, here it is plus। अब यहाँ पर देखो ये इकलौता एक ही टर्म है, ये पूरा एक पॉलिनोमियल, बट दिस इज वन टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। So how to get the power of total power of this polynomial? We will add this 5 plus 3, but everyone forgets 1, but which should also be considered. That becomes 9. Then this term 2xy cube, अब 2 का कोई रेस टू नहीं होता क्योंकि 2 is a constant polynomial, means 2 is equal to 2x raised to 0 and x raised to 0 is nothing but 1 according to indices rule. So that becomes 2 into 1, that is 2. So that way 2 has no power. So it is a constant. X raised to 1 here and y is raised to 3. So 3 plus 1 is 4. The total power of this term 4x square y z square. So here 2, this is 1 here nothing and 2 plus 1 plus 2, that is 5. So इन तीनों में से कौन सा बड़ा है? 9. So इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है 9. Now let's see types of polynomials based on number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स से एक पॉलिनोमियल। अब here there are monomial, binomial and trinomial, the three types of polynomials based on number of terms. Monomial means single term, 2x, it's a single term. 5 is also a single term. X raised to 4 plus x, there are two terms. X raised to 4 is a term and x is also a term. That is a binomial. We will say if there are two terms in the polynomial, then it is a binomial. And if there are three terms in a polynomial, it is half y square minus 2y plus 5. There are three terms, that is a trinomial. You have been learning this in your lower standards. Now let's say types of polynomial based on degree. Polynomial in one variable, 3x minus 1. Why in this polynomial there is that what is degree of the polynomial, that is 1. Why? Because here x raised to 1 and 1 is a constant polynomial and 3 is also constant, they don't have any degree. So here x is raised to 1, so degree is 1, so therefore it is called a linear polynomial. Okay, so polynomials are of different types based on degree also and based on terms also. Next is 2y square plus y plus 1. Here highest power is 2 because here it is 1 and here it is 2. So highest power is 2, therefore it is the degree of the polynomial. And if whenever in a polynomial the degree is 2, it is a quadratic polynomial. Next is x cube plus x square plus 2x plus root 3. So here we are not saying how many terms are there. So here x cube, x raised to 3 it is, and here x square, and here it will be 1. And so in this polynomial the highest power is 3, so therefore it is the degree of the polynomial. And whenever in a polynomial there is the degree 3, then it is called a cubic polynomial. So these are the linear, quadratic, cubic polynomials. Linear polynomial means degree 1, quadratic means degree 2 and cubic polynomial means degree 3. Next is, let's see the coefficient standard and index form of the polynomials.
we will go to the exercise. I am just explaining the concept of the exercise to you so that you are easy to understand it. So here what is px? Px is nothing but polynomial in x. We pronounce it like that. Is equals to x minus 3x square plus 5 plus x raised to 4. This is a polynomial. It's a polynomial in x because all the variables are of x, which can be written in descending powers of its variable as x raised to 4 minus 3x square plus x plus 5. This is called the standard form of the polynomial. So what is standard form of a polynomial? When the degree or the powers of the polynomial are arranged in a descending order, means पहले बड़ा उससे छोटा पावर वाला. तो इस वाले पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर इस वाले के पास है, x रेज टू 4. 4 इज द हाईएस्ट पावर एंड इट्स डिग्री. तो ये सबसे पहले आना चाहिए, अरेंज करेंगे. उसके बाद 2 3 तो है नहीं किसी के पास, तो माइनस 3x स्क्वायर बाद में आएगा. उसके बाद 1 जिसके पावर इसका है वो यहाँ पर आएगा, और 5 की पावर से 0 की मैंने आपको बताया था वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री और पावर इज 0. जो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को रखना, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. In this polynomial there is no term having power 3 of the variable. We can write it as 0x cube. हम लोग यहाँ पर कोई भी एक ऐसा भी टर्म नहीं है जिसके पास 3 है, so that is a missing term. We will write it as 0x cube with 0. Okay, and why x cube? Because it is the variable used in this polynomial, and it can be added to the polynomial and it can be rewritten as x raised to 4 plus 0x cube minus 3x square plus x plus 5. तो इंडेक्स फॉर्म में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, लेकिन उसमें जो मिसिंग टर्म है उनको भी ऐड करते हैं. सो दैट वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म. सो देयरफॉर दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. One can write the coefficients of the variables by considering all the missing terms. The polynomials, the standard form of the polynomial. For example, x cube minus 3x square plus 0x minus 8 can be written as bracket 1 comma minus 3 minus 0 comma 0 minus 8. This form of the polynomial is called coefficient form. So what is coefficient? First let's learn what is coefficient of a algebraic term. So here x cube is a algebraic term and its coefficient means उसके साथ जो नंबर है चिपका हुआ. तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब 1 होगा. So that is the coefficient of x cube. फिर यहाँ पर 3x square. 3 is the coefficient because it is taken with the variable. So that are coefficients. अब coefficient फॉर्म में क्या करेंगे पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट से लिखेंगे. उसके लिए आपके पास पहले वो पॉलिनोमियल का इंडेक्स फॉर्म होना चाहिए. इफ यू हैव द इंडेक्स फॉर्म, उसके बाद ही कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास इंडेक्स फॉर्म होगा तभी वो जो मिसिंग टर्म्स है उनका द कोएफिशिएंट एज 0 इट इज इंक्लूडेड इन द कोएफिशिएंट फॉर्म. जैसे यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड किया गया है. वी विल राइट इट इन अ ब्रैकेट. अगर माइनस है तो माइनस को भी इंक्लूड करेंगे हम, -3 मतलब भी रखेंगे. द साइन डजंट चेंजेस. हम एक एग्जांपल ले लिया, तीनों फॉर्म में एक पॉलिनोमियल को लिखना है. वो पॉलिनोमियल असल में है 3m raised to 5 minus 7m plus 5m cube plus 2. अब इसे हम लोग राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे. तो 3m5 प्लस 5m क्यूब माइनस 7 प्लस 2. हमें बस उन्हें उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर. Write it in the index form by considering on the missing terms with coefficient 0. So 3m raised to 5 plus 0m raised to 4. तो 5 के और 3 के बीच में 4 मिसिंग है. यहाँ पर हम लोग 4 को यहाँ पर लेंगे, और 7m और 5m क्यूब इन दोनों के बीच में एक मिसिंग है, वो होता है स्क्वायर 2 रेज टू 2. वो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे. So it becomes 3m raised to 5 plus 0m raised to 4 plus 5m cube plus 0m square minus 7m plus 2. So ये write it in a coefficient form. से हम लोग को सिर्फ coefficient फॉर्म लिखने के टाइम आपको अच्छे से ध्यान देना होगा इंडेक्स फॉर्म पे. ये 3 लिखने का, ये 0 लिखने का, ये 5 लिखने का, फिर ये 0 लिखने का, फिर ये -7 तो -7 लिखने का, फिर ये 2 लिखने का. एंड पुट इन अ ब्रैकेट एंड पुट कॉमर्स विच इज मस्ट. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर डिग्री के लिए आप इंडेक्स फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में से कोई भी देखो, और उसमें जो भी हाईएस्ट पावर है उससे डिग्री लिख दो, जैसे कि यहाँ पर 5 है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.1. मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. स्टेट वेदर द गिवन algebraic expressions are polynomials, justify.
क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सो हम लोग को बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमको दी है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं। पहला है y प्लस 1/y। हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि every algebraic expression is not a polynomial, but every polynomial is a algebraic expression. Okay? So हर एक algebraic expression means सभी polynomials भी algebraic expressions ही है, लेकिन हर एक algebraic expression एक polynomial नहीं होगा, but every polynomial is a algebraic expression. अब पहला वाला देख लेते हैं y प्लस 1/y। अब 1/y को अगर हम लोग सिर्फ y की तरह लिखना है तो उसके ऊपर -1 आ जाएगा, क्योंकि when it is taken upwards then it gets minus चार्ज। क्यों? क्योंकि जब एक पॉलिनॉमियल y रेज टू -1 है, इस तरह का एक टर्म है, हम लोग उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको अपॉन कर देते हैं, उसका वी कैन से इट एज रेसिप्रोकल। तो इसके नीचे 1 होगा ना, कुछ भी नहीं है तो दैट बिकम्स 1/y, और उसका ये रेज टू पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए वैसे किया, अगर उसको उल्टा वापस कर देंगे तो उसका रेज टू पावर माइनस हो जाएगा। एंड अब पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तभी होगा जब उसके पावर पॉजिटिव इंटीजर हो गए सभी। हाँ, तो हियर द पावर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, therefore it is not a polynomial. Next is 2 minus 5 into root x. अब what is a root x? Nothing. बट यहाँ पर रूट टेक्स में यहाँ पर देखो, ये रूट का जो साइन है यहाँ पर 2 होता है। अगर 2 नहीं लिखा होता है फिर भी वो दैट इज अंडरस्टूड, तो दैट विल बी, अगर इस रूट को निकालना है तो हम लोग ये 2 को यहाँ पर लेके आएंगे, और x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 तो होगा ही, तो 1/2 हो जाता है, तो हो जाएगा 2 minus 5x 1/2। अभी 1/2 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। सो हियर द पावर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, therefore it is not a polynomial. नेक्स्ट वन, x² + 7x + 9। सो यहाँ पर सारे पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो देयरफॉर इट इज अ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट वन, 2m रेज़ टू -2 + 7m - 5। अब यहाँ पर -2 पहले ही हमको मालूम पड़ गया पावर है, तो कोई और देखने की जरूरत ही नहीं है। दैट विल बी नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली। सो हियर द पावर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट वन इज 10। अब 10 एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जैसे कि मैंने बोला था सारे नंबर्स जिनके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं। उनका मतलब है 10 इज इक्वल टू 10x रेज़ टू 0, दैट इज 10 into 1, क्योंकि x रेज़ टू 0 और एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1 ओनली, so therefore 10 is a polynomial. Write the coefficient of m³ in each of the given polynomial. तो बहुत सारे polynomials दिए हैं, उनमें m³ जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है हम लोग को लिखना है। तो पहला है m³, अब इसमें कुछ भी नहीं दिया तो 1 होगा, दैट इज कोएफिशिएंट इज 1। अब सेकंड है -2 3/2 प्लस m -√3 into m³। अब यहाँ पर m³ के साथ √3 है, तो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इट। ओके, और अगला है -2/3 m³ -5m² + 7m - 1। तो अब ये इस टर्म में m³ यहाँ पर है और उसके साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, -2/3, तो देयरफॉर द कोएफिशिएंट इज -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पॉलिनॉमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, उसके बेसिस पे हम लोग को पॉलिनॉमियल लिखना है, लेकिन वो x होना चाहिए उसके वेरिएबल। तो मोनोमियल विद डिग्री 7, हमको एक ऐसा मोनोमियल लिखना है उसका डिग्री 7 होना चाहिए और वेरिएबल x होना चाहिए। सो आई हैव रिटन इट x रेज़ टू 7, दैट्स द सिंपल आंसर। बाइनोमियल विद डिग्री 35, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए लेकिन डिग्री 35 होगी, मतलब कोई एक टर्म कोई 35 होना चाहिए। तो ऐसे मैंने लिखा है x रेज़ टू 35 + x², तो इसमें बड़ा वाला 35 है पावर, तो वो डिग्री हो जाता है, तो ये उस इंफॉर्मेशन को वैलिड है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। अब ट्राइनोमियल लिखना है लेकिन उसमें जो एक पावर के पास होना चाहिए 8, उसका पावर एक टर्म के पास, तो तभी वो करेक्ट होगा क्योंकि उसकी डिग्री 8 होगी ना। फिर मैंने लिखा है x8 + x + 7, तो यहाँ पर 8 सबसे बड़े पावर है, वो डिग्री भी हो गई और एक ट्राइनोमियल भी है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल्स। इतने सारे पॉलिनॉमियल्स दिए हैं, मैंने एक डिग्री को इसे टेबल फॉर्म में लिख दिया है सारे साथ में। सो √5 की डिग्री क्या है? अब √5 इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू √5 x रेज़ टू 0, सो दैट इज 0, इट इज डिग्री, ताकि मेंशन डी है। नेक्स्ट है
एक्स रेस टू 0, उसकी डिग्री भी 0 ही है। फिर एक्स रेस टू 2, अब ये मोनोमियल है, इसके साथ और कोई पॉलिनोमियल है तो इसकी पावर 2 भी है और इसकी डिग्री भी 2 ही होगी। अब यहाँ पर एक बाइनोमियल आ गया, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री लिखेंगे, तो जो √2m⁻⁷ तो यहाँ पर 10 ही हो गई डिग्री, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बाकी के दोनों सिर्फ m को है। 2p⁻√7, तो यहाँ पर भी बाकी दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सिर्फ p है, p के साथ 1 होगा क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो दैट इज द डिग्री। देन 7y-y³ प्लस y⁵, तो यहाँ पर 7y के में y 1 है, यहाँ पर 3 है, ये 5 है, बड़ा है 5, सो वी विल राइट दिस 5। नेक्स्ट इज xyz प्लस xy-z, तो xyz मतलब 1, x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, z के ऊपर 1, इस पूरे टर्म की पावर टोटल कितनी होगी 3, 1 + 1 + 1, और xy में 1 + 1 2 होगा, इसका टर्म का पावर है 2, और ये होगा 1 ही, कुछ एक ही है, तो 3 2 1 में से सबसे बड़ा 3 होता है, तो इसका डिग्री 3 होगा। m⁻³ n⁻⁷ माइनस 3m⁵ n⁻1 प्लस m⁻1 n⁻1, तो यहाँ पर अभी ये सब वैसे ही करना है हमें, इस पूरे टर्म के टोटल पावर निकालनी है। 7 + 3 = 10, ये 5 + 1 6 होगा, यहाँ पर 1 + 1 2 होगा, तो इज दिस 10 इज द हाईएस्ट पावर, सो देयरफॉर इट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है। पहला देख लेते हैं, 2x² + 3x + 1, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। देखो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, x की 1 है, ये कांस्टेंट है, और इसके 2 सबसे बड़ा है, तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक। अगला है 5p, अब 5p यानी कि यहाँ पर p के साथ 1 ही होगा, तो 1 आया तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगला है √2y-½ अब y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, एंड इट इज ओनली वेरिएबल, सो लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज m³ + 7m² + 5/2 m⁻√7, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 है, बाकी सारी छोटी है, 3 2 ये 1, सो दैट इज डिग्री, और डिग्री जब 3 होगी तब वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब a², अब हमको सीधा सीधा मालूम पड़ता है a² यानी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3r³ यहाँ पर डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग को कुछ पॉलिनोमियल्स दिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब उनको उनकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है, बस अरेंज करना है। पहला वाला है m³ + 3 + 5m, अब इनमें सबसे बड़ी 3 है, अभी 5m पहले आएगा क्योंकि इसका 1 है और ये कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा, तो वी हैव जस्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। सेकेंड वाला है -7y + y³ + 3y³ -½ + 2y⁴ -y²। अब आप इसे एकदम ध्यान से देखिए और इसे एकदम ऑर्डर में कीजिए। 5 सबसे पहले आएगा, वो सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 वाला आएगा, तो इसे ऑर्डर, उसके बाद ये कांस्टेंट है तो ये आएगा, जैसे ऑर्डर में हमको लिखना है। देखिए मैंने लिखा है y⁵ + 2y⁴ + 3y⁵ -y² -7y⁴ माइनस कांस्टेंट पॉलिनोमियल दैट इज ½ इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। सब कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब उसके लिए हमको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म चाहिए, क्योंकि जो मिसिंग टर्म है उसका भी कोएफिशिएंट हमको लिखना होगा। तो पहला वाला है x³ -2, अब x³ -2 है, इस पहले इसमें 2 नहीं है, x⁻², x⁻1 नहीं है, तो इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं, तो x³ + 0x² + 0x - 2। अब आ गया ये, अब इसको देख के आपको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, अब इसको मत देखिएगा बाद में, इसको देख के कोएफिशिएंट फॉर्म लिखिए, ब्रैकेट डालना ज़रूरी है और बीच में कॉमा भी होना चाहिए। कोएफिशिएंट फॉर्म में ये कुछ नहीं है, तो इधर 1 इसका, ये 0, ये 0, कॉमा, ये -2 तो -2, और एक है 5y, अब 5y इसका रेज़ टू 1 है, अब 0 वाला नहीं है,
आप जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल डालते होंगे तो वो 0 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाले पॉलिनोमियल -2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि -2 इज नथिंग बट -2x⁻0, दैट इज ओनली -2। तो 5y इसके साथ एक और एक होना चाहिए जिसका जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो हम लोग 0 ही डालेंगे। इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू 5y प्लस 0, कोएफिशिएंट फॉर्म उसका क्या होगा, 5 लीजिए और 0 डाल दीजिए। सिर्फ 5y इसमें 1 ही आया, y⁻1 ही है, हमको 0 वाला भी चाहिए, यानी कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर, लेकिन जब कुछ दिया नहीं मिसिंग है वो, तब हम लोग 0 ही लेते हैं, याद रखिए। अगला है 2m⁻4 -3m² प्लस 7। अब इसमें यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, वो वाला ऐड कर देते। इंडेक्स फॉर्म 2m⁻4 प्लस 0m³ -3m² प्लस 0m प्लस 7। कोएफिशिएंट फॉर्म इसको देख के लिखने का है 2, 0, ये -3, 0, साइन को भी भूलना मत, 7 प्लस है तो प्लस, माइनस टू माइनस। अब 2 -2/3 दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी इसकी 0 डिग्री है, इससे ज़्यादा आगे तो कुछ नहीं होगा, लास्ट 0 ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसका कोएफिशिएंट फॉर्म भी यही होगा, कोएफिशिएंट फॉर्म इज -2/3। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तभी हम लोग को जो पॉलिनोमियल्स यहाँ पर एक कोएफिशिएंट फॉर्म में दिए है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। क्या, जब भी एक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट 3 होंगे तो उसकी डिग्री 2 होगी। हमेशा याद रखना जितने कोएफिशिएंट एक पॉलिनोमियल में उसके उसके -1 उसकी डिग्री होगी। एक एग्जांपल ही लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक देखा था, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, देखो 2, 3, 7, इसकी डिग्री यहाँ पर रॉन्ग है, एक्चुअली हम लोग को लिखना होता है 2। क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट 3 होंगे, डिग्री 2, कोएफिशिएंट 4 डिग्री 3, कोएफिशिएंट 5 डिग्री 5 - 1 दैट इज 4। सो अब यहाँ पर देखो आप ही, ऐसा क्यों होता है कि उससे -1 ही डिग्री क्यों होता है, क्योंकि एक कांस्टेंट होता है ना, 0 भी आ जाता है ना, इसका डिग्री कांस्टेंट होता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। देखो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3, तो डिग्री होगा 3 - 1 2, क्योंकि लास्ट वाला नंबर कांस्टेंट होगा इसलिए। तो इंडेक्स फॉर्म हम लोग क्या रखेंगे, कोई भी आप वेरिएबल यूज करते हो, x, m, p, तो मैंने x लिया है, हम इनको ऐसे 1x², 2x और प्लस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको सिर्फ 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, वही स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म वही है। फिर यहाँ पर देख लिए कोएफिशिएंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 कोएफिशिएंट, तो डिग्री होगी 4, क्योंकि लास्ट वाला को ये होगा कांस्टेंट नंबर, तो इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा 5x⁻4, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 आना चाहिए, हमने x वापस लिया है, आप कोई भी लिख सकते हैं, 0x³, 0x², 0x - 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सारे 0 इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स फॉर्म में मिसिंग वाले इंक्लूड होते हैं, तो अब ये 0 वाले नहीं लिखोगे, डायरेक्टली 5x4 - 1 वाला लिखोगे। अब यहाँ पर अगला वाला है -2 और ये है 2 और -2 फिर से 2, अब माइनस का भी आपको सम्मान रखना है, तो ये 4 है, तो ये डिग्री 3 होगी, तो इंडेक्स फॉर्म -2x³ प्लस 2x², माइनस का माइनस ही रखना, -2x प्लस 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी वही होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। चलिए वो करते हैं, हम लोग को इस तरह आंसर लिखना है। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बॉक्स है, ये देखो पहला वाला देख लेते हैं, x + 7। पहले हम लोग देखे पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, x + 7 ये 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल में जाएगा। फिर x², इसमें एक ही टर्म है, मोनोमियल हो जाएगा। फिर x³ + x² + x + 5, इसमें 4 टर्म है, तो ये तीनों में से कोई नहीं है। फिर 2x² + 5x + 10, ये 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल में जाएगा। फिर x³ + 9, ये 2 टर्म वाला बाइनोमियल में जाएगा। 3x² + 5x, ये 2 टर्म वाला है, ये बाइनोमियल में जाएगा। अब हम लोग बेस्ड ऑन डिग्री देखते हैं, x + 7, इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल में जाएगा। x², ये इसकी डिग्री 2 है, तो ये जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में।
फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसमें सबसे बड़ा 3 है तो इसकी डिग्री 3 हुई, वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, इसमें हाईएस्ट है 2, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। फिर एक्स क्यूब प्लस 9 वाला, इसमें डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 3x स्क्वायर प्लस 5x डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अभी ये अभी जो मेरा एंड होता है, हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट किया। इफ एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।